علیکم احسن ناشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستوں، پیش خدمت ہے ایک کتاب لگاؤ، اے کلیکشن آف شارٹ اسٹوریز بائی ترنم جمال، کیئر آف ایس ایم پرویز کریم، 26 زکریا اسٹریٹ، کولکتہ 7,73,000۔ ای میل ترنم جمال 533@gmail.com۔ پرائس ہے ₹200، ایئر 223۔ یہ کتاب حکومت بہار محکمہ کابینہ سیکریٹریٹ اردو ڈائریکٹوریٹ کے مالی تعاون سے شائع ہوئی ہے۔ انتساب ہے والد محترم سید جمال عبد الباقی صاحب مرحوم اور والدہ محترمہ ارشدی خاتون صاحبہ مرحوم۔ اس کتاب سے کے دوسرے صفحے پہ ایک مضمون ہے، تسلیم عارف اسسٹنٹ پروفیسر اور کوآرڈینیٹر، ویسٹ بنگال اسٹیٹ یونیورسٹی، باراسات۔ لگاؤ محترمہ ترنم جمال کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں کل 21 کہانیاں شامل ہیں۔ ان کے افسانوں میں انسانی زندگی کے مختلف شیڈز نظر آتے ہیں، رنج و غم، شادمانی و شادکامی، کامیابی و ناکامی، عشق و محبت کی تڑپ، رشتوں کی شکست و ریخت وغیرہ کو ترنم جمال نے اپنے افسانوں میں بطور خاص جگہ دی۔ افسانہ نگار کا خاص کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کسی بھی کردار کو حالات کے آگے سفر ڈالتے نہیں دکھایا، بلکہ ان کے کردار روزمرہ کی زندگی میں اپنے حالات سے ہر طور پر دو ہاتھ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں شمالہ وقت ہے حصار سے باہر، ناہید، دل کا رشتہ، شیلا، راز، راکیش، وجہ وغیرہ کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ لگاؤ دل کو چھو جانے والا افسانہ ہے جس میں ایک ایسی بچی کی کہانی بیان کی گئی ہے جو جسمانی طور پر معذور ہے، لیکن اسے محبت کی بے پناہ دولت میسر ہے۔ وہ اپنے فیملی ممبرز کی بہت چہیتی ہے، لیکن کم عمری میں ہی وہ فوت کر جاتی ہے۔ اولاد کی موت، اور وہ بھی کم عمری میں، یہ کسی بھی والدین کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے۔ افسانہ نگار نے اس بچی کی ماں کو صبر اور ہمت کی بے مثال پیکر کے طور پر خلق کیا ہے۔ آخر قصور کیا تھا؟ حالات حاضرہ سے متاثر ہو کر لکھا گیا افسانہ ہے جس کا تھیم ہجومی تشدد یعنی ماب لنچنگ ہے۔ وطن عزیز میں آئے دن ایک مخصوص مذہب کے افراد کو سر راہ بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیا جا رہا ہے، اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ افسانہ نگار نے مذکورہ افسانے میں کئی چپنے والے سوالات قائم کیے ہیں جن کے جوابات اب تک نہیں مل سکے۔ امید ہے کہ محترمہ ترنم جمال کا مجموعہ لگاؤ افسانے کے شائقین اور قارئین کے لیے دلچسپی کا سبب ہوگا، اور اس کے مطالعے کے بعد قارئین کو کہانیوں اور کہانی کار سے بالضرور لگاؤ پیدا ہوگا۔ تو یہ مضمون تھا، تسلیم عارف صاحب نے لکھا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر، کوآرڈینیٹر، ویسٹ بنگال اسٹیٹ یونیورسٹی، باراسات۔ اور اس کتاب کے آخری صفحے پہ یعنی کہ لاسٹ پیج پہ ایک مضمون ہے جس کے مضمون نگار ہیں علیم ہاشمی، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، لیڈی برابون کالج، کولکتہ۔
collection of short stories written by तरन्नुम जमाल। तरन्नुम जमाल कलकत्ता की मशहूर मारूफ अफसाना निगार हैं, जिनका पहला अफसानवी मजमुआ लगाव के उन्वान से शाये हो रहा है। इस मजमुआ में कुल 21 कहानियाँ शामिल हैं, जिनकी क़रात से खुशगवार हैरत के साथ साथ मुसर्रत भी होती है कि उनको कहानी बुनने में कुदरत हासिल है। मोहतरमा का कलम रवां दवां है और उसलूब में दिलकशी और असर आफरीनी है। ज़बान सुस्ता, साफ़ और शफ़ाफ है। मजमुआ में शामिल कहानियों के किरदारों को अफसाना निगार ने नहायत उम्दगी से तराशा खराशा है। वाक़यात भी दिलकश पेश किए गए हैं। बाज़ कहानियाँ तो ऐसी हैं जिसके वाक़यात कारी को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि कहानीकार ने अपने आस पास के माहौल से वाक़यात और किरदारों का इंतखाब किया है। तरन्नुम जमाल ने अपनी बाज़ कहानियों में समाज के सुलगते मसले को भी कहानी का मौजू बनाया है। आज दुनिया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि हमारे समाज का एक अहम मसला मजहबी मुनाफरत के साथ साथ कौमी यकजहती कमज़ोर होता तसव्वुर भी है। सियासत और रेशा दावानियों ने इंसानों के जहन में इस तरह जहर भर दिया है कि कौमी यकजहती, फ़िरका वाराना हम आहंगी, मजहबी रवादारी के तसव्वुर पर नहायत फ़िक्र अंगेज़ और पुरअसर कहानियाँ मोहतरमा के मजमुआ में मिलती हैं। बाज़ कहानियों में ख्वाब के चकनाचूर होने का जिक्र भी मिलता है, लेकिन मोहतरमा का कमाल ये है कि ख्वाब की ताबीर में इंसाफ बरता है। आज भी हमारे माशरे में समाजी तफरीक पाई जाती है। अमीर और गरीब के दरमियान एक फ़ासला होता है। ख्वाब और हकीकत के तसादुम को अफसाने का मौजू बनाना मोहतरमा का कमाल है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मजमुआ के अफसाने ज़िंदा मौज़ूआत पर बिखरे हुए हैं। उन अफसानों में पेश करदा मसाइल वो मसाइल हैं जिससे आज भी हमारा माशरा जूझ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मोहतरमा तरन्नुम जमाल का कलम इसी तरह रवां दवां रहेगा और उनकी कहानियों को पढ़कर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अनक़रीब दूसरा अफसानवी मजमुआ लेकर हाजिर होंगी, क्योंकि ये मजमुआ बहुत पहले मनसे शहूद पर आ जाना चाहिए था, लेकिन चंद नामसाइद हालात की बिना पर इशाअत में ताख़ीर हुई। मैं मोहतरमा तरन्नुम जमाल को खूबसूरत अदबी तोहफ़ा के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। हलीम हाशमी, असिस्टेंट प्रोफेसर, शोबे उर्दू, लेडी ब्राउन कॉलेज, कोलकाता। और अब आगे पेश है लफ्ज़ तरन्नुम जमाल। मेरे अफसानों का ये इंतखाब क़ारीन की खिदमत में हाजिर है। किताब आपके हाथों में है। मैं अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब हूँ, इसका फ़ैसला आपको करना है। मेरा आबाई वतन बिहार, ज़िला नालंदा, गांव उगावा है। ये एक ऐसा गांव है जहाँ इल्म का परचम हमेशा बुलंद रहा है। असातिज़ा, डॉक्टर और वकला के अलावा ऐसे अहले कलम भी यहाँ पैदा हुए जिन्होंने उर्दू दुनिया में नाम रोशन किया। मुताला का शौक़ मुझे बचपन से रहा है। मेरे वालिदैन को इल्म अदब से गहरा लगाव था। बचपन के दौर से जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो किताबें। बहुत सी किताबें और रसायल हमारे यहाँ पाबंदी से आते थे, जिनका मुताला हम सभी भाई बहन ज़ौक़ व शौक़ से करते थे। हमारे वालिदैन आज़ाद ज़हन और खुली सोच के मालिक थे, इसलिए गांव में रहकर भी हम सभी भाई बहन तालीम की दौलत से सरफराज हुए हैं। मेरी इब्तिदाई तालीम उगावा मदरसा फ़सीहुल उलूम, जो आज भी कायम है और गर्दो नवा के लोगों को मुस्तफ़ीज़ कर रहा है। स्कूल की तालीम बिहार शरीफ
गर्ल्स हाई स्कूल से हासिल की और ग्रेजुएशन की तालीम बिहार शरीफ महिला कॉलेज से मुकम्मल की। मुताला और ख़त व किताबत के शौक़ ने मुझे डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी से मिलवाया। यूँ तो स्कूल के ज़माने से ही उनकी गज़लें नज़में पढ़ती थी जो मुझे बहुत पसंद आती थी। इस तरह रिसाला बाजी में एक दफ़ा उनकी हम शाये हुई और फिर मैंने उन्हें मुबारकबाद का ख़त लिखा। अगले हफ्ता मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने मुझे ख़त का जवाब दिया और आज उन्हीं की हौसला अफजाई और काविशों का नतीजा है कि मैं इस काबिल हुई कि अपना अफसानवी मजमूआ शाये कर रही हूँ। मेरे अफसानों में समाजी मसाइल की अक्कासी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए कि मैंने आस पास की ज़िंदगी को जिस हुस्न क़बा से देखा है उसकी अक्कासी हूबहू मैंने की है। इन अफसानों में तमानियत बख्श सोच की आयनादारी मिलेगी जिनसे गहरी वाबस्तगी और फ़िक्री हमआहंगी आप महसूस करेंगे। क़ारीन की तबाह नाजुक को मलहूस खातिर रखते हुए मैंने तूल बयानी से गुरेज किया है और हयात की को हकीकत पसंद दाना निगाह से देखा है। तरन्नुम जमाल, पब्लिशर हैं सारा पब्लिकेशन कोलकाता, 7,23,000, ईयर है 223 और प्राइस है ₹200 ओनली। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप तरन्नुम जमाल के पहले अफसानी मजमूआ लगाव को ज़रूर ख़रीद कर पढ़ेंगे ताकि अफसाना निगार की हिम्मत बंधे और उसे जिला मिले, ताकत मिले कि वो दूसरे अफसानों की किताब भी आपके सामने जल्द से जल्द शाये कर सके। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। याद रखिए किताब का नाम है लगाओ, मुसन्निफ़ा हैं तरन्नुम जमाल और ये इनका पहला अफसानवी मजमूआ है और कीमत है सिर्फ ₹200। तो मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। एक नई कहानी, एक नई दास्तान आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।